I, Rashmi, President of Kartavya, the Civil Services Society of Norimal College, Delhi University, welcome you all to this lecture organized by Kartavya on the occasion of Gandhi Jayanti. We are very feeling pleased and extremely privileged to have with us Dr. Anil Datta Mishra sir, who is an eminent Gandhian scholar and writer and has authored more than 30 books and hundreds of research papers. मैं पूरे कर्तव्य परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ सर. So it is to inform you all that we are going to record this entire lecture and will upload on it on YouTube channel with due consent of our guest. You can ask a question in either Hindi or in English towards the end. The session is completely bilingual. Without any further delay, now I would like to ask moderators of today's session, Kamal and Prakhar, to please start the event. Thank you, Di. परम वंदनीय माँ शारदा और आजादी के वीर सपूतों एवं उनके बलिदानों को नमन करते हुए हम आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। मैं शुरुआत कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा। सत्य, अहिंसा और प्रेम की कीमत सारी दुनिया ने है जानी। सत्य, अहिंसा और प्रेम की कीमत सारी दुनिया ने है जानी। दिल में है तस्वीर आपकी और आंखों में है पानी। दिल में है तस्वीर आपकी और आंखों में है पानी। हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नमन है आपको। हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नमन है आपको। आपके अनंत उपकारों के ऋणी है हिंदुस्तानी। आपके अनंत उपकारों के ऋणी है हिंदुस्तानी। नमस्कार, मैं कमल जोशी, कर्तव्य द सिविल सर्विसेज सोसाइटी किरोड़ीमल महाविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक सदस्य हूं। मैं आज गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कर्तव्य द सिविल सर्विसेज सोसाइटी की स्थापना सन 2017 में हुई थी, जो सभी विद्यार्थियों को एक सामूहिक शिक्षा और सामूहिक सफल तैयारी करने का एक माहौल प्रदान करती है, जो इसके सिद्धांत एस्पिरिट डे कॉर्प्स का भी एक भाग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजादी के संघर्ष के लिए हमारे अनेक वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ऐसे ही वीर पुरुषों में से एक थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर भारत में अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। उन्होंने अपने इन सिद्धांतों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान की और स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो भारत का प्रत्येक भारतवासी जो एक स्वतंत्र वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहा है, वह सभी इन महान पुरुषों और सेनानियों के ऋणी हैं। अब मैं इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए अपने सहयोगी प्रखर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का परिचय हम सभी से कराएं। Thank you, Kamal. I am feeling extremely privileged and honored to welcome our guest speaker, Dr. Anil Datta Mishra sir. I hope that I would be able to do justice to his personality with my words. Dr. Anil Datta Mishra sir is an eminent Ghanaian scholar and writer. Sir started his career as an assistant professor in the Department of Non-Violence and Peace Studies in Jain Vishwa Bharati University at Lucknow, Rajasthan. He has been a deputy director of National Gandhi Museum. Sir also held the position of General Secretary of International Society of Ghanaian Studies and a member of Board of Studies, Punjab and Nagpur University, and is also a member of Ghanaian Studies Center of different colleges and universities across India. Presently, there is a treasurer at Indian Institute of Public Administration, New Delhi, and the Honorable Senior Vice President of Sulabh International Social Service Organization, New Delhi. Sir has authored more than 30 books and published number of research papers. Sir has also been awarded in 2006 with Spiritual and Value Education Award by International Association of Educators for World Peace. All this shows us that what a great personality Sir is. Now, carrying forward the session, I would like to invite Anil sir to please come forward and to express his views about the topic of today's session. Before that,
I would like to request to the audience to please switch on their camera to make the session more interesting. And if they had any query related to the topic, they can drop it in the chat box or can unmute themselves at the time of question and answer round. Over to you, sir. Thank you very much for giving me an opportunity to share my view on lessons from the Gandhi. In fact, you have decided the topic, not mine. It is very difficult to speak on this topic. I will try my best to convince you. Now, the question is, who is Gandhi? गांधी कौन थे? पहले हमें युवाओं को ये समझना होगा. किसी ने कहा है, दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालत का मुंह मोड़ दिया. गांधी परिस्थिति को बदल दिए हैं. अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्यों युवाओं को इससे सीखना चाहिए? देखिए, गांधी देखने में सुंदर नहीं थे. His handwriting was not very good. You can't read it basically. It is very difficult to read it. As a student, he was not a successful student, neither at London nor in India. He was not a topper like Rajendra Prasad or brilliant, a scholar like Ambedkar or Pandit Jawaharlal Nehru. He was an ordinary man. But what make him an extraordinary man, that is more important. Gandhi was most simple and humble person. Gandhi was most simple and humble person. But what are the factors that make him honest, make him vibrant, make him energetic to become a leader of the world? That was the greatness of Gandhi. That was the greatness of Gandhi. So from Gandhi, one must learn. Every student must learn. He questioned the fundamental. In classroom, you must be interactive. आज क्या हो गया, विद्यार्थी वैसे शिक्षकों को पसंद करते हैं जो 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, 25 में 25 दे दे, क्लास एक भी ना ले तो वो टीचर बड़ा अच्छा है. And then we will say that Gandhi is relevant or ये नहीं चलेगा. तो पहला गांधी से लेसन जो हमें लेना है, गांधी was truthful to himself. He never compromised with the principle. I am a student of Delhi University. And one should be proud of that we are a student of Delhi University. गांधी के बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर. गांधी दिल्ली नहीं पैदा होते हैं, लेकिन the lesson we have to learn is that we should become a Gandhi of our department. We should become Gandhi of KMC College, Gandhi of Delhi University, Gandhi of India. Or leave it. We should become Gandhi of our family. Long back, on 2nd October 1925, Gandhi said, the things that will destroy us are politics without principle, pleasure without conscience, wealth without work, knowledge without character, business without morality, science without humanity, worship without sacrifice. We must remember all the 7 things. It is very must. That is why, in the present context, we need a Gandhian alternative. And when I said Gandhian alternative means you must read the real Gandhi, not the Gandhian. What I am saying you should not follow. Please read the original text of Gandhi. That is my humble request to the youth, so that we can learn from Gandhi. My whole argument is, जब मैं गांधी की बात करता हूं तो एक बात समझ लेना चाहिए. Appearance is not reality and reality is not appearance.
जो दिखता है वो गांधी नहीं है। गांधी बड़े सिंपल दिख रहे हैं लेकिन वो सिंपल नहीं है। हिंदी में एक पोएम है, सच सैया के दोहरे हो नाभिक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। गांधी बड़े सिंपल बात करते हैं, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, वो बड़ा वाइडर है। हमें गांधी को बियॉन्ड जाकर सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। So if you want to understand Gandhi, his concept of truth, सत्याग्रह, सर्वोदय, नॉन वायलेंस, इन सभी को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना पड़ेगा। That was the uniqueness of the Gandhi. When I say about the Gandhi, Gandhi means local also. At the same time, Gandhi is global also. And my whole argument is that Gandhi is a byproduct of the global culture. He read Gita, he read Mahabharata, he read Kuhn, he read Hobbes, Locke, Rousseau, Karl Marx, etc., etc. But finally, he draw his conclusion from the Bhagavad Gita. The role of Gita is very important in the freedom struggle. Tilak wrote Gita Rahasya in the Mandalaya, prison, Gol. Aurobindo Ghosh has also written on Gita. But Gandhi, what Gandhi said? Gandhi said कि जब भी मैं समस्याओं से ग्रसित रहता हूं, समाधान मुझे गीता से मिलता है। But at the same time, Gandhi never visited any temple. Look at the beauty of Gandhi. So my humble request to you is, all of you must have read my book, Reading Gandhi. So today I will deliver something different. Gandhi means sharing and caring. And throughout the life he did it. Gandhi himself said, dialogue is prelude of democracy. I am very thankful to KM College, the Kartabya Society, particularly to all the participants and president and secretary. What is the contribution of Gandhi? Later on, I will come on the what lesson we learned from the Gandhi. The first thing is that Gandhi challenged the principle of Darwinian theory of survival of the fittest. No, only fittest can. Ordinary man can also survive. That was the lesson of Gandhi. Freud said that society exists because of sex, superego, etc., etc. Gandhi said no. The history of mankind is love, compassion, sacrifice, etc., etc. Karl Marx said that no. History of mankind is history of class struggle, etc., etc. Gandhi said no. History of mankind is history of cooperation, love, affection, etc., etc. So Gandhi's main purpose was to integrate head, heart, or hand. हेड, हार्ट और हैंड। कितना आसान है देखिए, तीनों के बीच की दूरी भी कम है। लेकिन मेरा ये मानना है जब तीनों को आप एक कर देते हैं तो आप गांधी बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं, महावीर बन जाते हैं, गांधी बन जाते हैं, विवेकानंद बन जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस बन जाते हैं। It takes sometimes century and century to integrate head with heart and hand. So that was the uniqueness of Gandhi. The second thing, गांधी स्वयं कहते हैं कि मैं नया चीज कुछ नहीं कह रहा हूं। समय कम है इसलिए मैं पूरे डिबेट को एक लाइन में, एक वर्ड में कहता हूं। What Gandhi is that he put ancient wisdom in modern context. ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। What he did, practice as he preached.
There is no dichotomy between the theory and practice, between the public life and the private life. आजकल आप क्या देखते हैं हमारे समाज में, टीचरों को भी मैं जब देखता हूं तो उनके पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में डिफरेंसेस हैं, नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमें गांधी से लेसन लिखने की जरूरत है। आई विल साइट वन एग्जांपल। व्हेन ही वाज ए यंग चाइल्ड, innocent child, some inspector visited his school and he wrote the wrong spelling of kettle. केटली का वो गलत स्पेलिंग लिख देते हैं। Teacher requested him to copy from the other student, but Gandhi never did so. When inspector went to school, the teacher came to Gandhi and he said, एक तुम ही ऐसा बालक हो जिसने की गलत लिखा और बाकी। What was the reply of Gandhi? Gandhi replied to the teacher कि you are teaching us that one should be very honest, और आप ही सर हमें मुझे सिखा रहे हैं डिसऑनेस्टी बनने के। तो that was the power of the Gandhi. So one must learn. Without work you cannot get success. Without hard work you cannot top in the examination. टीचर अगर 15 में 25 नंबर दे भी देता है, आपके जीवन में वो काम नहीं आएगा। काम वही आएगा वट एवर नॉलेज यू गेन्ड इट। यही गांधी से सीखने की जरूरत है। दैट द लेसन यू मस्ट लर्न फ्रॉम द गांधी। देयर इज अनदर एग्जांपल। व्हेन गांधी वाज गोइंग टू लंदन फॉर हायर एजुकेशन, फॉर हायर स्टडी, हिज कास्ट पीपल आस्क्ड, व्हाई गांधी यू आर गोइंग देयर? आप मत जाइए। और गांधी जी के जो साला थे, गांधी जी की यंग एज में शादी हो गई थी कस्तूरबा से। यू नो, कस्तूरबा वाज इल्डर देन गांधी। ये उस समय की बात है व्हेन द सोसाइटी वाज कंजर्वेटिव। आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। दैट टाइम इंडिया वाज वेरी कंजर्वेटिव। द पीपल एंड पार्टिकुलरली गांधी बिलोंग्स टू मोद बनिया कम्युनिटी एंड गांधी हिमसेल्फ रोट that Baniyas are more conservative and Mod Baniyas are more conservative. I am not saying these are the Gandhi's word. और देखिए, उनके साला ने उस मीटिंग में कहा कि आप लंदन जा रहे हैं, मैं पैसा, उन्होंने कहा था कि मैं पैसा भेजूंगा आपको। उन्होंने कहा मैं पैसा नहीं भेज सकता हूं क्योंकि मुझे जाति से लोग निकाल देंगे। यंग गांधी स्टूड खड़ा होता है और वो कहता है, Please outcast me, but I will go to London. That was the power of Gandhi. यूथ को ये रिवेल करना चाहिए। You must rebel against caste. You must rebel against conservative elements. The way we are treating our women, the girls, it needs to be changed. आप सभी यंग आदमी हैं, आपकी जब शादी होगी तो आप दहेज मांगेंगे। ये कितनी शर्म की बात है कि हम पढ़े लिखे लोग भी दहेज की मांग करते हैं। मैंने शादी किया था, मैंने दहेज नहीं लिया था, 1 रुपया भी नहीं लिया था। माय वाइफ इज टीचिंग इन गार्गी कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा आपसे जो आग्रह है वो ये है कि गांधी मीन्स टू फॉलो समथिंग, द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। व्हाट इज द गांधीज कंट्रीब्यूशन? ही गेव वॉइस टू द वॉइसलेस and power to the powerless. His theory of nationalism is emancipatory. गांधी के इर्द गिर्द जितने भी लोग आए सबको उन्होंने महान बना दिया, या महान लोग ही गांधी के आसपास आए। So my whole argument is Gandhi was the byproduct of the global culture. He has spent 3 years as a student in London and 21 years as a lawyer, as a practitioner, as a social activist, as a social reformer in South Africa. Gandhi went to South Africa in search of bread and butter. He went to South Africa in search of livelihood. In search of livelihood. And he returned back as a Mahatma, the son.
And somebody has rightly said that साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. वो क्या कमाल था? We got independence through the non-violence, means of non-violence. You are a young scholar, you are a young student, you must read Tolstoy letter to Gandhi. The title of that letter is the Hindu, a letter to a Hindu. And where he advised Gandhi कि you develop such a technique जो कभी हार ही नहीं पा सकता है. That was the beauty of Gandhi. The next most important point we must learn from the Gandhi, in every circumstances he used non-violence as a technique of liberation. And through these non-violence, ultimately we got independence. And here I will cite one example, salt satyagraha. Gandhi used salt as a gunpowder to blow the foundation of the British Empire. That was the uniqueness of Gandhi. Throughout the life, Gandhi experimented. His later experiment is better than the previous experiment. That is my understanding of Gandhi. So, in a simple word, Gandhi is simple. Everything else is complex. So you leave the complex part of the Gandhi, his philosophy. You must understand the real Gandhi. Gandhi himself argued that, dialogue is a prelude to peace. आप अपने आप से संवाद करिए. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं. मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया, मेरे पास पैसे नहीं थे. That was the reality. I came to Delhi with a meager money. वो भी मैंने ट्यूशन से कमाया था, उसको लेकर मैं आया था. लेकिन उससे ज्यादा जो सत्य है वो ये है, I stayed in इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस, जो उस समय इंडिया का सबसे कॉस्टलीस्ट हॉस्टल था. अगर मैं गांधी ना पढ़ा हुआ होता तो मैं फ्रस्ट्रेटेड होता. So every student must follow the Gandhian principle. Means truth, honesty, punctuality, dialogue with yourself. So Gandhi used, non-violence as a technique, as a weapon. That was the uniqueness of the Gandhi. Now coming to the another point that is more relevant, step by step, Gandhi reached at the pinnacle of existence where no one else had ever reached. आप छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में करते रहिए. मैं जब एमए पास किया था तो मैंने बोल सकता था ना लिख सकता था, और आप लोगों ने हमारे किताब रीडिंग गांधी को फेमस बना दिया. Credit goes to you people. So, Gandhi, who motivated millions of people that time, during his lifetime, continue to inspire now millions of the people globe. So, local Gandhi now become a global Gandhi. आप गरीब घर से आइए, रिच घर से आइए, दिल्ली में हैं या दिल्ली के बाहर के हैं, ये सब इमैटेरियल हो गया है. नाउ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. आप जहां भी रहिए, जिस पद पर रहिए, कुछ ना कुछ नयापन करिए, कुछ ना कुछ नया चीज करिए. गांधी ऑल्सो कन्फ्रंटेड विथ, Gandhi didn't have a state power in his hand. Neither he has economic power, nor he has a dharma power. But Gandhi has a moral power. What India needs today? We need ethical people at every place.
We need ethical principle. We need ethical teacher. We need ethical student. आज स्टूडेंट भी ऐसे हो गए हैं, मैं जानता हूं कि बिना पढ़ाए हुए अगर 25 में नंबर दे दिया जाए तो वो बड़े खुश होंगे। नो, हम लोग ऐसा नहीं करते थे। एक दिन शिक्षक क्लास नहीं लेता था, तुरंत जाकर उनको बुला के लाते थे कि सर प्लीज कम एंड टेक द क्लास। That was the beauty of the Gandhi. Everybody is a Gandhi. When I say a person who has a heart to help someone, you are working in a closed society, Kartabya society. Kartabya is very close to Gandhi. So from the Gandhi you learn, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जाने रे, जो दूसरे के दर्द को समझ सकता है। आप में ऐसी भी लड़कियां होंगी जो गरीब घर की होंगी, ऐसे भी लड़के होंगे जो गरीब घर के होंगे। उनके दर्द को समझिए, उनके साथ अपने आइडियाज बांटिए, उनके साथ चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, कभी उनको पेन गिफ्ट कर दीजिए, कभी किताब खरीद के नया गिफ्ट कर दीजिए। ऐसा आप लोग करते हैं? यू एक्सचेंज योर बुक्स, अपने जूनियर को दे दीजिए। गांधी से ये मतलब नहीं है कि जो गांधी ने किया वही हम करेंगे। नो, वी हैव टू इवॉल्व आवर ओन आइडिया। So I will sum up the Gandhi in this way. Gandhi was a creative person, creating history for himself and rest of world to follow. आप अपने समाज का गांधी बनिए। So anybody who is ready to help other, who is kind to other, is a Gandhian. आप जितने लोगों को मैं देख रहा हूं अभी मुस्कुराते हुए स्क्रीन पर, लड़के और लड़कियां को, I see you as a future Gandhi of KM College, future Gandhi of Delhi University, future Gandhi of your family. So from Gandhi, what you learn, integrate your head, heart, hand and health. Gandhi talks about the 3H because we are living in a pandemic, so I will say fourth is the health also. So wear mask, etc., etc. So from Gandhi, you learn the lesson, think out of the box. Think out of the box. जो सब लोग काम करते हैं वो काम मत करिए, कुछ डिफरेंट करिए. You do something new. Come out of the cage. पिंजरे से बाहर आइए. आप सौभाग्यशाली है कि you got admission in KM College. अभी मैं आज ही देख रहा था कि 100% लाने पर SRCC वगैरह वगैरह में एडमिशन होंगे. आपके यहाँ भी इकोनॉमिक्स में 100% से कम पर एडमिशन नहीं होगा. इमेजिन करिए. सो वी आर लकी पर्सन. इसलिए कम आउट द केज, अपने पिंजरा को तोड़िए. यू मस्ट बिकम ए ग्लोबल पर्सन, ग्लोबल सिटीजन, विचारों में, एक्शन में वगैरह वगैरह. कम आउट ऑफ द कुकून. अपने सेल को, आवरण को तोड़िए, जाति का आवरण, वुमेन का आवरण. एंड वी मस्ट बिकम ए फाइटर. गांधी वाज ए फाइटर. थ्रू आउट द लाइफ ही फाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस. गांधी का मूल मंत्र है, उसने मानवता को मानवता का पाठ पढ़ाया. आदमी को जो है कैसे हम आदमी बने रहें इसके लिए पढ़ाया. नाउ कमिंग टू द second part of the lecture, that is what lesson one learned from the Gandhi. Nation without vision will perish. आज भारत की दशा ठीक नहीं है. 2 दिन पहले हम लोग गांधी भवन में, मैं था आपके दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैं राजेंद्र प्रसाद पर बोल रहा था. आई वाज आस्क्ड टू स्पोक ऑन राजेंद्र प्रसाद जी. और मैंने कहा देखिए, वही एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जो पढ़ने के लिए विदेश नहीं गए. मालूम है, उनके टीचर ने उनके कॉपी पर ही टॉप्ड इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी.
और जो एग्जामिनर थे उन्होंने लिखा था कि परीक्षक से ज्यादा परीक्षार्थी जानता है। आज वैसे ऑनेस्ट शिक्षकों की बड़ी कमी है, सॉरी टू से। और वही राजेंद्र प्रसाद जो हिंदुस्तान में पढ़े, जब जॉर्ज पंचम इंडिया आए थे तो रिसेप्शन भाषण उन्होंने दिया था, एंड ही स्पोक इन इंग्लिश, एंड दैट इज द क्लासिकल इंग्लिश, एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड हिज command over the language, command over the the subject, and the way he presented his view in the reception committee. तो हम लोगों को जो भी काम करना चाहिए परफेक्शनिस्ट होकर करना चाहिए, ये गांधी से सीखने की जरूरत है। गांधी के बारे में किसी ने सिंपली कहा है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वी मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द स्वदेशी, द वैल्यू ऑफ स्वराज। हमें हिंदी में बोलने में शर्म आता है, ये नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिस लैंग्वेज में आप बेस्ट बोल सकते हैं, लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, वैसा करना चाहिए। I will request you, because you all are a student, needs are endless, so control your needs. जरूरतें की जो आवश्यकताएं हैं, अननेसेसरी जो आवश्यकताएं हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। सभी मैं विद्यार्थी को हमेशा करता हूं। तो गांधी इज नॉट ए मैन, गांधी इज ए आइडियोलॉजी, ए थॉट प्रोसेस। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको गांधी पर जो है समझना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, Gandhi was a prolific writer. He wrote in a very ordinary and simple manner. He wrote an autobiography, The Story of My Experiment with Truth, Satyagraha in South Africa, Hindu Swaraj, that is the part of the Delhi University syllabi, 909. Gandhi paraphrased the Sarvodaya of John Last unto the last book. For decade he edited Harijan, Indian Opinion, Young India, Navjivan. And every day Gandhi used to reply the letter. Around 450 letters जो है प्रत्येक दिन गांधी जवाब देते थे। गांधी की पूरे राइटिंग को 100 वॉल्यूम में दिया गया है, इसलिए को समझना डिफिकल्ट है। वो मार्क्स की तरह किताब नहीं लिखते, अंबेडकर की तरह नहीं लिखते, जवाहरलाल नेहरू की तरह डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं लिखा है उन्होंने। छोटी छोटी उनकी पुस्तकें हैं, एक्सेप्ट जो मैंने 4 किताबों का नाम आपके सामने लिया। लेकिन वो जो लेटर्स हैं, इट कंटेन्स द पॉल्स ऑफ विजडम। एक एक लेटर का इतना महत्व है जो हमें समझना पड़ेगा। गांधी की 2-3 बात करके मैं आपके मेन थ्रस्ट पर आऊंगा। Gandhi gave emphasis on the Swaraj, but what is the meaning of Swaraj? Swaraj is based on inward freedom, not the outward. Swaraj belongs to individual alone. Swaraj means freedom for all, that is the Sarvodaya. Swaraj is eternal vigilance on the part of individual. Swaraj involves equality. Swaraj involves non-violence. And when Gandhiji said non-violence, it is not the non-violence of Jainism. The fundamental characteristic of Gandhian concept of non-violence are, non-violence is primarily an interrealization. It is a matter of faith and conviction. Non-violence is interpenetrated with the truth. Non-violence is an alternative to violence or conquest. And finally, non-violence is not a negative concept. अब देखिए, हमको भी पढ़ाया गया था जब बचपन में थे,
गांधी का मतलब है कोई इस गाल में थप्पड़ मारता है तो इधर बढ़ा दीजिए, नो। ये मैं पूरा रिसर्च कर रहा हूं 30 सालों से, कहीं पर मुझको नहीं मिला। तो गांधी यूज नॉन वायलेंस एज ए वीपन ऑफ ब्रेव, नॉट एज ए वीपन ऑफ वीक। ये गांधी से हमें जो है वो सीखने की जरूरत है। अब देखिए, जिस टॉपिक पर मैं बोलने के लिए आया था, हम गांधी के जीवन से क्या सीखेंगे, इसलिए सीखना जरूरी है बिकॉज लॉन्ग बैक इंडियंस रिजेक्टेड गांधी, ये मेरा मानना है। पार्टिकुलरली इन गांधीयन इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, जो गांधीयन संस्थान है उसने भी गांधी को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, तो फ्रॉम गांधी यू लर्न फर्स्ट लेसन इज दैट इंटीग्रेट योर हेड, हार्ट एंड हैंड। यूपीएससी करना है, सारी ताकत लगा दीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जानी है, सारी ताकत लगा दीजिए। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी ए डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, बिटवीन योर ड्रीम and what action every day you are doing. Life means when you live at your own term, अपने पर नहीं, ऑलवेज यही रहिए, अपने आप को विस्तारित करिए, थिंक डिफरेंटली, दूसरों से अलग सोचिए। यही गांधी थ्रू आउट द लाइफ किया है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जेबी कृपलानी शांति निकेतन में गांधी से मिलने गए। उस समय गांधी क्वाइट यंग थे आपकी तरह। जेबी कृपलानी ने गांधी को कहा, क्या कर लीजिएगा बाबा नॉन वायलेंस से, इतिहास से लेसन लीजिए। तो व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ यंग गांधी? आई रीड हिस्ट्री, but at the same time I create history and I will create history. And Gandhi created history, whether we believe or not. Now Gandhi is a global Gandhi. 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस के रूप में पूरे विश्व में मनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका भी गए थे। बाइडेन ने कहा कि we have to learn tolerance from the Gandhi. ये वहां के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। तब जाकर हम लोगों ने टॉलरेंस और डायलॉग की बात की। थिंक डिफरेंटली, फाइंड पर्पस, मीन्स विल फॉलो। नेवर गिव अप, आशा कभी मत छोड़िए। आई विल विन, मैं कभी न कभी विजेता जरूर बनूंगा। फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस इन योर लाइफ, पार्टिकुलरली लड़कियां, उन पर बहुत तरह की बंधन लगाई जाती है। lot of restrictions. Break that restrictions. So practice as you preach, think differently, find the purpose, means will follow, be the change you want to see in the world. जैसा आप परिवर्तन करना चाहते हैं आप वैसा करके देखिए। So from Gandhi you learn सेल्फ रेस्पेक्ट, इसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिग्निटी, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आई वाज लेक्चरर इन राजस्थान, और उस समय हम लोगों को यंग एज में जब थे तो 2200 से 4000 रुपया स्केल मिलता था, मतलब 4800 के आसपास सैलरी मिलती थी। हम सभी शिक्षक लोग बैठे हुए थे, मैं यंग था। तो उन्होंने पूछा, मिश्रा जी आप पैसे का क्या करते हो? और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद जस्ट गया था, एंड आई वाज क्वाइट यंग। यूपीएससी हुआ नहीं था, उसका गम था, बहुत दुखी भी मैं हुआ। मेरे शिक्षक ने कहा कि दुनिया वहीं खत्म नहीं हो जाती है, उसके बियॉन्ड भी लाइफ है, उसके बियॉन्ड भी है, और मैं उस पर काम किया। अब आप देखिए मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं,
तो मैंने कहा कि 1000 रुपया मैं अपने पास रखता हूं, कुछ पैसे माता पिता को मैं भेज देता हूं, कुछ पैसे को माता पिता को भेज देता हूं। एक ब्रदर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको मैं पढ़ा रहा हूं। सभी लोग हंस पड़े मेरे ऊपर, कितने तुम मूर्ख हो। मैंने कहा यस आई एम ए फूल। गांधी को भी लोग मूर्ख कहते हैं। और देखिए आज नतीजा, मेरी पत्नी गार्गी कॉलेज में पढ़ाती है, जिस भाई को मैं पढ़ा रहा हूं वो पटना का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, हाई कोर्ट में वो जज बनने वाला है, नाम रिकमेंड करके सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। अब ये बताइए कि मैं वेल्दी हूं कि वो वेल्दी है। सो गांधी क्रिएटेड द वेल्थ फॉर अदर्स। आज भी लोग मुझे बड़े मूर्ख कहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट के ईमानदार जब आप होते हैं कोई स्वीकार नहीं करता। मेरे बहुत सारे मित्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन जब मैं मिलता हूं उनसे मैं कहता हूं हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहां की मैं जाकर एज ए चीफ गेस्ट लेक्चर ना दिया हो। वही हमारी धन है। आई नेवर डिसीव्ड एनीबडी इन माई लाइफ। ये गांधी से सीखने की जरूरत है। तो माई होल आर्गुमेंट इज दैट प्रिजर्व द रिलेवेंट, डिस्ट्रॉय द इररिलेवेंट एंड क्रिएट व्हाट इज नीडेड। ये गांधी से आपको सीखने की जरूरत है। From the Gandhi you must learn. Gandhi was a visionary but with missionary zeal. पागल हो जाइए, दीवाना हो जाइए। जैसे प्यार में हम एक दूसरे के दीवाना हो जाते हैं, वैसे ही किताब के प्रति दीवाना हो जाइए, अपने गोल के प्रति दीवाना हो जाइए। उस गांधी की मैं बात आपसे कर रहा हूं। लेसन टू बी लर्न, नंबर 1, पुट ए फेस ऑन योर पॉलिसी। Get ready to be lonely leader. Embrace transparency in your life. Define your no compromise zone. Cultivate the courage of conviction. Make time your ally. मालूम है, जब सूरत कांग्रेस हो रहा था, बाल गंगाधर तिलक आधे घंटे लेट से गए और गांधी उस समय तिलक के सामने कुछ नहीं थे। And what was the Gandhi opening remark? Maharaj Tilak, Swaraj is delayed for half an hour. मैंने आपको वचन दिया था। मैं आज दिल्ली में नहीं हूं, लेकिन मैं श्योर किया सभी दृष्टिकोण से कि मैं 3 बजे आपसे जुड़ूं, और मैं जुड़ गया। दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। अगर मैं नहीं जुड़ता तो कितना दुख मुझे होता आप सोच नहीं सकते। गिल्टी कॉन्शियसनेस होती, तो ये गिल्टी फीलिंग होनी चाहिए। मेक टाइम योर एलाई, डोंट वेट। हार्नेस द एनर्जी ऑफ इनपरफेक्शन। नो वन इज परफेक्ट, गांधी वाज आल्सो नॉट परफेक्ट, लेकिन उसको वो परफेक्ट बनाते रहे पूरे जिंदगी। ए ऑर्डिनरी मोहनदास करमचंद गांधी, बाय हम्बल रिक्वेस्ट एंड द putting his energy honestly, he became the most powerful leader of India. Always stay dissatisfied with knowledge. रूसो की भी मिल भी कहता है कि आदमी को सेटिस्फाइड नहीं होनी चाहिए। इस होते रहिए। विद इन 5 मिनट में आई विल कंक्लूड। स्टे डिससेटिस्फाइड। द ट्रेजरी ऑफ टाइम लॉस्ट, cooperation must be earned. Boycott the bad bargain. Opt out of the argument. काम करिए, आर्गुमेंट से बाहर निकलिए। Respect everybody and always, whether he is a principal or teacher, vice chancellor or anybody. Give every job a high profile. जो भी काम मिलता है उसको अच्छे ढंग से करिए। Your company, in your family, परिवार के साथ समय दीजिए, दोस्तों के साथ समय दीजिए। रिक्विट रिजल्ट, जहां भी रहिए रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए। अंत में मैं जो आपसे बात करूंगा वो ये है, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी।
गांधी से लेसन लेने की जरूरत है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए एंड देन कमांड। लास्ट में गांधी कहता है, जो हमारे उसके भी हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही अंतिम विजय होती है। ये सब चीजें गांधी से हम सीख सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे निवेदन यही करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसके बाद होने जा रहा है, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे आई विल रिप्लाई टू यू। बशीर वद्र की एक पंक्ति है, वो कहते हैं, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आप जहां भी रहिए मुस्कुराते रहिए, पल्लवित होते रहिए, पुष्पित होते रहिए, यही गांधी का संदेश है। गांधी का मतलब था, जो मैंने डिफाइन किया था, वो ये था, गांधी वाज ए क्रिएटिव पर्सन क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर हिमसेल्फ एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टू फॉलो। तो बीइंग ए स्टूडेंट वी मस्ट बी ए क्रिएटिव पर्सन। हमारा अप्रोच विजनरी होना चाहिए, इवोल्यूशनरी होना चाहिए, कंप्रोमाइज मत करिए। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ द सक्सेस। सक्सेस का जो पैमाना है वो बहुत लंबा है। यूनिवर्सिटी में टॉप करिए, यूपीएससी के एग्जाम में टॉप करिए, वो भी आप ही की तरह ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। द डिफरेंस इज दैट दे आर द डिटरमाइंड बॉय। आपको डिटर्मिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, और यही काम गांधी ने किया था। और यही करके गांधी ने क्या कहा, इसलिए गांधी से सीखने की जरूरत है, एवरी एंड इज द बिगिनिंग ऑफ अदर। कल कभी नहीं आता हमारे और आपके जीवन में, इसलिए आप जहां भी रहिए, जिस पद पर रहिए, आपसे मेरा जो निवेदन है वो ये है कि आपने मुझे लगभग 40 मिनट का टाइम दिया था, मैं उतना ही में अपनी बात को समाप्त करूंगा, और आप सवाल करेंगे उसमें आएगा कि गांधी से और एक और बात है। देखिए, साउथ अफ्रीका में गांधी को ट्रेन से उतारा गया था, he was thrown out of the train। प्रत्येक दिन वक्त हमें और आपको थप्पड़ मारता है और हम कंप्रोमाइज करते हैं। गांधी ने वक्त को बदल दिया, कंप्रोमाइज गांधी नहीं किए। देखिए, आत्मकथा में गांधी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी में, कि कोल्ड था एकदम, ट्रेन से मुझे उतार दिया गया, ठंड लग रहा था, ठंड लग रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उसी दिन वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। हार जिस दिन मान लेंगे, हार की जीत आपने कहानी पढ़ी होगी, नेवर एक्सेप्ट डिफीट इन द लाइफ। ये मेरा मैसेज है। जिंदगी में बहुत कुछ है, जिंदगी को अपने टर्म पर जीजिए, समझौता नहीं करिए। आने वाला जो कल है वो आपका है। गांधी से जो मैंने सीखा है वो ये है, अपनी बुराइयों को धीरे धीरे कम करिए, एंड यू विल रीच एट द टॉप। ये गांधी से हमें लेसन लेने की जरूरत है। नो कंसेप्ट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, कोई भी दर्शन कंप्लीट नहीं है। नो फिलॉसफी इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। इसलिए मार्क्स ने इतिहास का निर्माण किया, गांधी ने इतिहास का निर्माण किया, अंबेडकर ने इतिहास का निर्माण किया, स्वामी विवेकानंद हैज क्रिएटेड ए हिस्ट्री। पूरे वर्ल्ड वाइड आप चले जाइए, एवरीबॉडी नोज हिम। इसलिए जितने लोग आप हमें दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, आपको मैं फ्यूचर गांधी की तरह देखना चाहता हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनिए, प्रिंसिपल बनिए, साइंटिस्ट बनिए, जो कुछ भी आप बनिए, कुछ नाम करके जाइए। एपीजे कलाम की तरह, राजेंद्र प्रसाद की तरह। दैट इज द लेसन फ्रॉम द गांधी। लास्ट, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी के लिए
और समय हमेशा एक साथ नहीं रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं सीएम कॉलेज का छात्र रहा हूं, एलएस कॉलेज का मुजफ्फरपुर का मैं छात्र रहा हूं, और आज मैं उसी विश्वविद्यालय में मैं चीफ गेस्ट बन के आया था आज सुबह में। उसी के गेस्ट हाउस से मैं आपसे अभी संवाद कर रहा हूं। मुझे इतना प्रसन्नता हुई जो कि मैं जिक्र नहीं कर सकता। जब मुझे विश्वविद्यालय ने चीफ गेस्ट बनाकर कुलपति महोदय ने वहां बुलाया, तो नॉलेज की कद्र होती है। मैं वीसी ना बन पाया, अच्छा पद मुझे ना मिल पाया, मुझे उस बात का गम नहीं है, लेकिन मेरे संपर्क में जितने लोग आए सबके जीवन को मैंने बदल डाला एज ए टीचर, एंड आई एम प्राउड ऑफ कि मेरे वैसे विद्यार्थी रहे हैं। एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं गांधी पर लिखता हूं पिछले 30 सालों से। मैं एक बार दिल्ली से चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था। मेरे हाथ में हमारी एक किताब थी, उस समय आई थी, विकास पब्लिकेशन ने छापा था, महात्मा गांधी ऑन एजुकेशन। शताब्दी में ट्रेवल कर रहा था। सौभाग्य से मेरे बगल में मोहन भागवत जी भी बैठे हुए थे। उन्होंने जब किताब देखा तो मुझे कहा कि ये आपने लिखी है। मैंने कहा हाँ हमने लिखी है, और मैंने उस किताब को उन्हें गिफ्ट कर दिया। लगभग 1 घंटे तक उनसे चर्चा चलती रही। जब न्यू दिल्ली पर उतरने का समय आया तो उन्होंने जाते जाते इतना ही कहा, मिश्रा जी कुछ लिख डालिए मेरे ऊपर भी। मेरे ऊपर मतलब मेरे आइडियोलॉजी से रिलेटेड चीज को। मैंने काफी शोध किया, अनुसंधान किया, एंड देन आई रोट ए बुक ऑन दीनदयाल उपाध्याय। ही वाज वेरी नियरर टू गांधी। मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस संदेश में मेरे लेख छपते हैं, मैं आपके बहुत सारे आइडियोलॉजी से बिल्कुल नहीं मानता हूं, लेकिन मैं आपको गर्व के साथ ये कह सकता हूं, अभी आया कि किलर ऑफ गांधी। हम सभी लोग गांधी को डेली मारते हैं जब हम झूठ बोलते हैं, अन्याय के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। हमारे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे, जेडी सेठी, ही यूज्ड टू से कि ये जो सर्वोदयी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, ये डेली गांधी को मारते हैं, क्योंकि इनके कथनी और करनी में कुछ समानता नहीं होती है। तो आपसे मेरा बहुत आशा है, ईश्वर चाहा तो कभी आपके साथ आकर मैं केएम कॉलेज में बात करूंगा, उसका एक अलग ही अंदाज होगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं आपसे वशीरभद्र की पंक्ति के साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की साथ हो जाए। तो गांधी का मतलब जो आपसे मैं करके समाप्त कर रहा हूं वो ये है, वो शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालत का मुंह मोड़ दिया हो। यही गांधी का मैसेज है फॉर द स्टूडेंट, फॉर द नेशन, कि वक्त को बदल डालिए, वक्त से समझौता नहीं करिए, नदी के दिशा में नहीं चलिए, विपरीत में चलिएगा, देन यू विल क्रिएट द हिस्ट्री। और ये गांधी है बेसिकली। अब मैं आपके सामने निवेदन करता हूं, कोई भी सवाल है आप पूछिए, आई विल रिप्लाई टू आंसर यू। एक कागज दीजिएगा, आई विल रिप्लाई टू यू। Thank you very much, sir, for such an insightful lecture. I truly believe that today's audience must have learned various things about our great father of nation, Mahatma Gandhi, and we will surely become future Gandhi. Sir, now we are going to begin our question answer round. First, we are going to take questions that we have received through Google Forms, and then, if time permits, we will take the questions from the chat box. Sir, the first question has been asked by Monica Chaba and Rishabh Dwivedi that why थोड़ा Mahatma लाउडली Gandhi बोलिए wanted प्लीज, to. स्पीक लाउडली। Yes, sir. The first question is, sir, that why Mahatma Gandhi wanted to form a stateless society.
क्या चीज, आवाज नहीं आ रही है, बताएं। हाँ सर, why Mahatma Gandhi wanted to form a stateless society? स्टेटलेस सोसाइटी, Yes, sir. स्टेटलेस, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, next question is, what role did Kasturba Gandhi played in the personal and the professional life of Mahatma Gandhi? Okay, Kasturba Gandhi. Very good question. Now I will start with this question and then the question will come and I will reply. Gandhi became Gandhi because of Kasturba. You know, when Kasturba died in Aga Khan Palace, where they were kept as a prisoner, Gandhi wept, and what he said? I learned Satyagraha from Kasturba Gandhi. कस्तूरबा गांधी से बरी थी 6 महीने के आसपास में, 6 मंथ बंद थे। आप समझ जाइए, कस्तूरबा गांधी का घर और गांधी का घर बगल में है, खिड़की से कस्तूरबा को देख सकते थे। कस्तूरबा बहुत सुंदर महिला थी, बहुत सुंदर देखने में, आंखों में ये चमक थी कि उसका वर्णन स्वयं गांधी करते हैं, और आप जब कस्तूरबा के बारे में पढ़ेंगे तो आएंगे। गांधी के पहला जो सेक्रेटरी का नाम था सोल्जा सेल्सन, दूसरा सेक्रेटरी जो बनी थी उसका नाम था मिली ग्राहम पोलक, और थर्ड है, जर्मन है वो, उसका नाम है कैलनबाग। गांधी बिकेम गांधी बिकॉज ऑफ कस्तूरबा, बिकॉज ऑफ सोल्जा सेल्सिन, बिकॉज ऑफ मिली ग्राहम पोलक एंड बिकॉज ऑफ कैलनबाग। अगर ये लोग नहीं मिलते साउथ अफ्रीका में तो गांधी गांधी नहीं बन सकते थे। इसलिए मेरा आपसे जो आर्गुमेंट है, रिक्वेस्ट ये है, अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, संगति से गुण आते हैं और संगति से गुण जाते हैं। अच्छी संगति होना बड़ा जरूरी है। कस्तूरबा के बिना, विदाउट कस्तूरबा यू कांट थिंक ऑफ गांधी। सत्याग्रह गांधी ने कस्तूरबा से सीखा है। गांधी बड़े डरपोक थे, वो बाथरूम भी रात में जाते थे तो उनको डर लगता था अपनी परछाई से। तो कस्तूरबा यूज्ड टू गो विथ गांधी। ये गांधी का जो पत्नी का रोल है, समय कम है, इस पर विस्तार से भी चर्चा है। दैट वाज द रोल ऑफ कस्तूरबा। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं एलएस कॉलेज में पढ़ रहा था, हमारे हिंदी के एक प्राध्यापक थे, उन्होंने कहा प्यार क्या होता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी हैं। बरसात का समय था, एक सुंदर सी लड़की छाता से जा रही थी। सुंदर लड़की को देख के सबको आकृष्ट होते हैं, क्लास में हम लोग भी होते थे कि वो बात करे, उसके साथ एक कप ऑफ टी पिए वगैरह वगैरह। तो वो टीचर ने कहा कि मैं उस लड़की के छाते में चला गया बरसात में। उस लड़की ने मुझे बड़ा डांटा कि तुम क्यों छाते में आ गए। आप देखिए, फिर दोनों के बीच में प्यार का सिलसिला हो गया। दोनों एक ही जाति के थे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं, वो लड़की ने ये कहा कि तुम छाते में तो आ गए, अगर तुम विश्वविद्यालय में टॉप करके दिखा दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ये मुजफ्फरपुर की घटना है, कंजर्वेटिव समाज में। और देखिए, उस शिक्षक ने कहा कि मैं सारी ताकत लगा दिया और देखो भाग्य ने ऐसा साथ दिया कि मैं यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया और उस लड़की से ज्यादा नंबर लाया। हम दोनों पति पत्नी भी बन गए। उसके बाद वो प्रोफेसर बन गई और मैं रीडर का रीडर रह गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई ही नहीं। तो ये चीजें हैं, यही रोल कस्तूरबा का था। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि लव को भी, रियल फ्रेंडशिप से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, निगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। व्हाई गांधी वांट स्टेटलेस सोसाइटी? State is a means of exploitation. State accumulate all wealth, all power, everything controlled. Whether it is a Martian state, socialist state,
और आज का जो स्टेट है, स्टेट इज बिकमिंग मोर पावरफुल एंड स्टेट हैज इंटर्ड इनटू आवर लाइफ। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, हम सभी लोगों की जासूसी हो गई, सारा चीज, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, जो नहीं होना चाहिए। गांधी ने इस डिक्टम को माना कि दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न द लिस्ट, जो कम इंटरफेयर करे। आज स्टेट सब कुछ में आ गया है, ये नहीं होना चाहिए। वी वांट ए रियल स्वराज। गांधी टॉक्ड अबाउट स्वराज। आज क्या देखिए, स्टेट डिस्क्रिमिनेट करती है और तब रिजर्वेशन देती है। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड। स्टेट पहले क्या करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, इनइक्वालिटी को ब्रीड करती है और तब जाकर रिजर्वेशन देती है। इस कॉन्टेक्स्ट में गांधी ने स्टेट को कहा कि ये स्टेट ठीक नहीं है, ये क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे अगर और क्वेश्चन है तो पूछिए। Yes, sir. Sir, next question has been asked by Vatsala Dikshit that in Hind Swaraj, Mahatma Gandhi's idea on railways, doctor and lawyers are very orthodox. Do you think they are relevant today also? And how did Mahatma Gandhi change his ideals later on? You know, Gandhi himself was a lawyer. The lawyer's duty to resolve the conflict. आज के जो लॉयर हैं वो क्या है, कंफ्लिक्ट को बढ़ाते हैं। आप समझ गए? Therefore, Gandhi criticized lawyer. Gandhi maximum used railway. इनको बोल दीजिए कि आप के समय पर जुड़ जाएंगे, ये बोल दीजिए इनको। यू नो, सेकेंड पॉइंट जो मैं आपसे बात कर रहा था, रेलवे। गांधी मैक्सिमम रेलवे का यूज किया टू लिबरेट इंडिया एंड इंडियंस। आज रेलवे क्या है, एक्सप्लॉयटेशन का साधन है, जो गांधी कहता है उस समय भी। उस समय मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह वगैरह आप सब जानते हैं। जो रूरल एरिया है वहां की चीजों को शहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। गांधी का आर्गुमेंट था कि गांव और शहर में भेद नहीं होना चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं गांव में है, शहरों में है, वो गांव में होनी चाहिए। और यही बात एपीजे कलाम भी कहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गांधी ने कहा इट इज ए मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन गांधी ने उसी रेलवे के द्वारा देश को आजाद करने में योगदान किया। सेकंड पॉइंट। थर्ड जो था, डॉक्टर्स। डॉक्टर्स का बड़ा गांधी ने क्रिटिसाइज किया। हिंद स्वराज में भी, हिंद स्वराज में तो बहुत कम लिखा है रेलवे और इन चीजों में, अदर राइटिंग्स में गांधी ने बहुत क्रिटिसाइज किया है। डॉक्टर्स देखिए, जबकि गांधी का स्वयं डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन क्यों है? आप पेंडेमिक्स में देखिए, अभी जो दिल्ली में आया हुआ था वगैरह वगैरह, हॉस्पिटल्स जो है वो क्राइम सेंटर बन गए हैं। हार्ट की बीमारी नहीं भी है तब भी वो हार्ट का ऑपरेशन कर देंगे। ये जो डॉक्टर अनइथिकल बन गए हैं पैसा कमाने के कारण, मोर मनी के कारण, उसका गांधी क्रिटिसाइज करते हैं। उसका गांधी क्रिटिसाइज करते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। सो गांधी वाज वेरी क्रिटिकल टू रेलवे, वेरी क्रिटिकल टू डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। अब आप देखिए, एक तरफ कपिल सिब्बल को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ एम सिंघवी को खड़ा कर दीजिए, मुकुल रस्तोगी को खड़ा कर दीजिए। ये लोग एक एक केस के लिए 25 लाख रुपया लेते हैं। कैन यू इमेजिन? कहां से लोगों को जस्टिस मिलेगा? अभी जस्टिस रमन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहा कि नीड ऑफ जस्टिस इज इंडियनाइज। सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी में बहस नहीं कर सकते, हाई कोर्ट में आप बहस नहीं कर सकते। तमिल में क्यों नहीं होगा, तेलुगु में क्यों नहीं होगा, बंगला में क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। फ्रेंच में आर्गुमेंट हो सकता है, दूसरे में हो सकता है, तो इंग्लिश में ही क्यों हो?
भारत गर्म देश है, उसी तरह से आप गाउन पहन के आते हैं, कोट पहनते हैं। ये सारा चीजें कितना इररिलेवेंट है। इस सेंस में इंडियनाइज होना चाहिए। इंडियनाइजेशन जिसकी तरफ दूसरे लोग बात कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। जो हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को, हमारे एनवायरनमेंट को सूट हो। तो गांधी, इसलिए मैंने क्या कहा, गांधी पुट द एंशिएंट विजडम इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, कि धर्म की जो अच्छी बातें हैं स्वीकार करो, जो गलत बात है उसको फेंको। गांधी नेवर विजिटेड एनी मॉस्क एंड टेम्पल फॉर द वर्शिप। उस कॉन्टेक्स्ट में गांधी को देखिए। हिंद स्वराज इज ए वेरी रेडिकल बुक, उसको ओपन माइंड से पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद सर। सर आपसे एक अनुरोध था, क्या हम ये सेशन 10 मिनट और आगे कर सकते हैं? अगर आपकी एकदम अनुमति 20 हो। मिनट कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, धन्यवाद सर। सर हमारे पास चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो जी सबसे जी, पहले क्वेश्चन एक है। एक करके बोलिए और एक एक का मैं जवाब देते जाऊंगा। जी सर, सबसे पहले क्वेश्चन है दीपाली का। तो मैं दीपाली से कहना चाहूंगा कि वह आए और माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन करें। Good afternoon, sir. Sir, thank you so much for an insightful session. So, sir, my question is, like, in the world where everyone is in the race to achieve the most powerful position, where like various influences, diplomacies are going on. So, to what extent Gandhian philosophy is like relevant, or it will help it to achieve that particular position? I will reply from here. America is the most powerful country, and he has spent military and everything in Afghanistan for 20 years. Finally, he has to withdraw. And Biden argued to the Prime Minister of India that we have to learn tolerance from the India, from the Gandhi. गांधी भी डिप्लोमेसी करते थे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि लेक्चर जो है वो लेसन्स फ्रॉम द गांधी है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जाते हैं। अंबेडकर ही ऐसा व्यक्ति थे कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं। गांधी केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियंस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। और देखिए, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो वो एक धोती पहन के गए हैं वहां पर। उनको रोक दिया गया गेट पर। What was the reply of Gandhi? यहां पर डिप्लोमेसी यहीं पर सीखना है। कितने हम्बल वर्ड में रिप्लाई गांधी करता है। You go and ask your prime minister and the queen and the king if they provide one dhoti to the poorer Indian and one sari to the poorer lady of India, I will wear coat, pant and come here. मैं धोती पहन के जो आया हूं, मैं कोट पहन के आ जाऊंगा। And you know, उस समय इंडियन को सिटीजन नहीं कहा जाता था। गांधी हमेशा कहते थे कि वी आर ए ब्रिटिश सिटीजन बिकॉज यू आर रूलिंग अस, और वो कहते थे नो यू आर नॉट सिटीजन। तो गांधी सभी चीजों को इथिकल पॉइंट से देखे हैं। एंड गांधी वाज ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आज भी देखिए, अल्टीमेटली जब हम इंटरनेशनल रिलेशन में जाते हैं तो वहां भी डायलॉग होता है। तो गांधी का मतलब ये नहीं है कि डिफिटिस्ट। गांधी वाज ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, हार्ड बार्गेनर। हार्ड बार्गेनर, डिप्लोमेसी में बार्गेन करना पड़ता है। तो फ्रॉम द गांधी वी मस्ट लर्न हाउ टू बार्गेन एंड वी मस्ट वेरी इंटेलिजेंट टू बार्गेन। अब आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कितने तेज हैं। नेहरू के जैकेट को उन्होंने मोदी जैकेट में कन्वर्ट कर दिया। यू नो द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ बीजेपी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब कोई नहीं कहता है नेहरू जैकेट है, वो मोदी जैकेट है। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं। जब इंडियन पार्लियामेंट में
इंटर किए थे, तो ये नेहरू ने पहली बार कहा था कि आई एम ए फर्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया। फेसबुक पर देखिएगा कि पहली बार ये मोदी जी यूज कर रहे हैं। तो ये सारा चीजें जो है हमें डीप में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक लाइन में आपको कहा था, बिकॉज दैट वाज नॉट द इशू। तो लेकिन गांधी से एक चीज सीखने की बात है, गांधी इंस्पायर मासेज एंड मासेज इंस्पायर द गांधी। मोदी जी की हम कितनी भी क्रिटिसिज्म कर दें, लेकिन एक विशेषता है कि आज का यूथ मोदी मोदी करता है, चाहे पैसे लेकर करे या जिस तरीके से करे, लेकिन वो करता है। इसका मतलब है कि ही इज ए पॉपुलर अमॉन्ग द एस्पिरेशनल यूथ। ही कनेक्ट विद द पीपुल, द पब्लिक। जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं गांधी इसके नहीं है, लेकिन लास्टली जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनेस्टली लेबर जरूर करिए, सो दैट यू विल बिकम ए IAS अफसर और इंडियन फॉरेन सर्विस अफसर, IFS जरूर बनिए, क्योंकि बिना पद के आगे चीजें नहीं बढ़ेगी। मतलब अगर कुछ करना चाहते हैं समाज के बदलने के लिए, सोसाइटी के लिए, तो हमें करना चाहिए, आगे चलकर करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आज मैं इसलिए आपके साथ बोल रहा हूं कि मैंने 30 साल बहुत मन लगाकर पढ़ा, एंड एवरी डे इज ए न्यू डे फॉर मी, स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। क्योंकि जब मिडिल क्लास में आप जन्म लेते हैं तो यू हैव टू स्ट्रगल थ्रू आउट द लाइफ। आप जानते हैं IAS भी बन जाइएगा तो क्या है, दे आर डिग्निफाइड कलर। अगर ऑनेस्ट आप हैं तो यू आर ए डिग्निफाइड कलर, और क्या है। तो मेरा ये कहना है जहां भी आप रहिए, यू डू द वर्क ऑनेस्टली फॉर योर सेल्फ, और जब योर सेल्फ के लिए करेंगे ऑनेस्टली तो इट विल बी फॉर द कंट्री ऑल्सो। आज कहीं ना कहीं भारतवर्ष में ऑनेस्टी की बहुत कमी है, बहुत कमी है। उस पर मैं जितना कम चर्चा करूं वो कम है। मैं अपने इर्द गिर्द जब लोगों को देखता हूं तो बड़ा दुख होता है कहने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग सच ए डिलाइटफुल क्वेश्चन, insightful question. Thank you very much. Thank you so much. थैंक यू सर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विराज नंदा का, तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वह आए अपना क्वेश्चन पूछें। Thank you, sir. May I audible? Yes. Yes, you are. Good afternoon, sir. Sir, my question is, sir, Gandhi advocated that poverty is the worst form of violence and upheld the Sarvodaya to tackle it in the Gandhiji's talisman. Sir, Yes. so the Indian government is implementing welfare measures for below poverty line people and the poor masses on the lines of Sarvodaya for their upliftment. While irony is, from the days of my childhood, I am listening that poverty is hampering the development of India, and even today. So, sir, what do you think is the reason for this, and how can we overcome it, sir? And from Gandhian point of view, you should be very clear that no elite wants that poor should be get uplifted. They are poor because of rich. ये फेट वेट के कारण नहीं है, स्टेट एक्सप्लॉइटेटिव है ना, समाज हमारा एक्सप्लॉइटेटिव है। ये जो है इसके कारण वो गरीब है, ये नहीं है कि वो भाग्य से गरीब है। सिस्टम हमारा एक्सप्लॉइटेटिव है। एक नंबर कम आता है, आप IAS बनने से रह जाते हैं। आप देखिए इस बार जिसको 95% आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता। अब गरीब बच्चे कहां से MIT में पढ़ने जाएंगे और OP जिंदल में या क्या कहते हैं इसमें अशोका यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो स्टेट बात तो करती है पॉवर्टी एरिडिकेशन की, लेकिन रियल सेंस में वो नहीं करती है। वो लिप सर्विस देती है। वो व्यक्ति को ना तो मरने देती है और ना तो जो है वो केवल जिंदा रखने के बराबर है। अगर आपको देखिए
एजुकेशन का सिस्टम भी देखिए। आप कभी मेरठ यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर दूर है। क्या सिस्टम है। आपके यहाँ तो लक्की हैं कि केएम कॉलेज में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, अच्छे अच्छे लेक्चरर्स हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन बाहर आप जाके देखिए, दिल्ली से बाहर पूरा का पूरा शिक्षा सिस्टम रॉट है। चूंकि मैं लेक्चर देने आया हूं, इसकी अपनी मर्यादा है, मैं क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं कर सकता। रियलिटी क्या है, इसलिए इंडिया में मैं बार बार कहता हूं कि वी आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। ऑनेस्टी होनी चाहिए। किसानों की दुर्दशा देखिए, आर्मी में जो लोग काम करते हैं उनकी दुर्दशा देखिए, बहुत स्थिति खराब है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी दुर्दशा देखिए आप। तो ये सारी चीजों को हमको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। आज अगर गांधी जिंदा होते तो बहुत सारी चीजों का, बीजेपी भी क्या है देखिए, गांधी के सर्वोदय को अंत्योदय कहते हैं। व्हाट इज न्यू टू इट? स्वदेशी जागरण मंच उनका है, लेकिन सरकार जो है वो विदेशों से चीजें इंपोर्ट करती हैं और कहती है मेक इन इंडिया करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे। ये नहीं होगा। तो गांधी क्या थे कि रियल में वो पेट्रियट थे। आज के नेता को रियल में पेट्रियट होना पड़ेगा। वो पार्टी के लिए काम करते हैं, चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, लोगों के भलाई के लिए काम नहीं करते। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Even I too agree with that. As even the many intellectuals who protest for the change in the system, they will become accustomed to it when they come into the system, sir. Yes, it is true. आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। लोग पूना पैक्ट का विरोध करते हैं, जो दलित स्कॉलर है ना, लेकिन उसी पूना पैक्ट के द्वारा वो पार्लियामेंट में इलेक्शन जीत के आए हैं रिजर्व कैटेगरी से। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एवरीथिंग दे विल ब्लेम अपर कास्ट। लेकिन कभी आप देखिएगा दलित के आपस में भी शादियां नहीं होती हैं, आपस में भी डिस्क्रिमिनेशन है। एवरी कास्ट हैज ए हायरार्की। इंटेलेक्चुअल में भी वही है कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं सिस्टम में रहकर। मैं काफी समय विश्वविद्यालय में भी रहा हूं, गांधी म्यूजियम में भी मैं रहा, काफी समय तक रहा, राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में भी मैं प्रोफेसर रिसर्च रहा। लेकिन मैं जहां भी रहा छात्र हित में काम किया। मैंने कहा रिजल्ट निकालना है जल्दी निकालिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको, ऑनेस्टली निकालिए। तो देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा ये कहना है कि अगर ऑनेस्ट बनिए तो बाय कन्विक्शन बनिए, कंपल्सन मत बनिए, बाय चॉइस बनिए, और ऑनेस्टी से भी यू विल गेट एवरीथिंग। इसलिए गांधी को उस कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए। बहुत सारे मैं इंटेलेक्चुअल को जानता हूं जिनके चरित्र में गांधी 1% भी नहीं है और उन्होंने गांधी पर किताब लिख रखा है। आई नो नंबर ऑफ टीचर्स। वो टीचर हैं ही नहीं, वो लीडर हैं ही नहीं। लीडर मीन्स टू लीड, टीचर मीन्स टू ब्लो योर माइंड। शिक्षा का काम है क्या? टू चेंज योरसेल्फ। लेक्चर देने का मतलब क्या है? टू इंस्पायर यू, टू चेंज योर, टू थिंक इन अनदर वे। सोचिए, अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है, तभी तो समाज चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रहे हैं। हमें वैसे विद्यार्थी भी चाहिए। यू आर सो लकी कि आप हिंदुस्तान के अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एलुमनाई आपका बहुत अच्छा है। लेकिन उनसे पूछिए जो गांव में पढ़ रहे हैं, बिहार के यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनकी क्या दुर्दशा है, यूपी के यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। ये सारी चीजें पर बहुत चिंता करने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। और जिनके पास पैसे हैं वो बच्चे को अब अमेरिका और यूरोप कंट्रीज में भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ये सारी समस्या आ रही है, ये चिंता का विषय है। तभी तो आपने टॉपिक चूज किया लेसन्स फ्रॉम गांधी।
मैं गांधी पर रिसर्चर हूं, मैं गांधी पर वक्ता हूं, उनका प्रवक्ता नहीं हूं। गांधी को मैं बहुत पॉइंट पर क्रिटिसाइज भी करता हूं। रिसर्च करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में इंडियन थिंकर्स पर रिसर्च ही नहीं हुआ है। ये सारी चीजें, इसलिए व्हेन आई से कि इंडियनाइज होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकुलर एक कल्चर को थोप दीजिए। जो अच्छी पॉइंट है हमारी संस्कृति का, सभ्यता का, वो जरूर सीखना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। एंड आई गिव थैंक्स टू प्रोफेसर दिनेश सिंह, जिन्होंने रीडिंग गांधी जो है पॉपुलर कराया है। दीपक पेंटल साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है, उन्होंने रीडिंग गांधी को इंट्रोड्यूस किया। दीपक पेंटल साहब जब वाइस चांसलर थे तब मैंने रीडिंग गांधी किताब लिखी थी। तो मेरा ये कहना है कि गांधी को हम जीने का प्रयास करें। उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज क्राइसिस है हमारे समाज में, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, क्राइसिस ऑफ इथिक्स, क्राइसिस ऑफ मोरलिटी, ये सारा चीज है। Yes, sir. Thank you, sir, for donning your experience on us. या मैं जितनी मुझे गांधी समझ में है, या जितना मैं अंडरस्टूड कर सका हूं गांधी को, गांधी परिवर्तन को बड़ा स्वीकार करते हैं। आपको गांधी से ये सीखने की जरूरत है। जी जी। Sure, sir. We will try for it. या देखिए, मेरा ये कहना है कि जहां भी रहिए अपने एनर्जी को अच्छे ढंग से लगाइए और अच्छा विद्यार्थी बनिए, है ना। मैं चाहता हूं कि आप आईएएस बने, मैं ये नहीं कहूंगा, एकदम अच्छे पदों पर जाइए और वहां रहकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, जहां भी रहिए। I can take one or two question more. Thank you so much, sir, for such comprehensive answer. Due to time restrictions, sir, can we take more questions? I can take one or two questions. Okay, sir. क्योंकि मुझे एक और लेक्चर देना है, तो I need some rest. सुबह से मैं लेक्चर ही दे रहा हूँ। Yes, sir. Sir, this question has been asked by Manish Singh that following the path of Gandhi, Techno-Gandhian philosophy was formulated to resolve the complex conditions that provide a way for one's career and personal life. Sir, could you elaborate something on this? What is Techno-Gandhian philosophy? You know, have you heard the name company Satyam? Satyam was one of the finest Indian technology company, और वो फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? क्योंकि हमने उसमें गलत चीजें शुरू कर दी। कभी भी इथिक्स के बिना, मोरलिटी के बिना आप महान नहीं बन सकते, कोई अच्छा कंपनी नहीं बन सकता। चाइना का रियल एस्टेट आज खत्म हो रहा है, अमेरिका में 2 बड़े बड़े बैंक खत्म हो गए। तो जितने, चाहे नील कर्णी को लीजिए या टाटा को लीजिए, इन सब के पर्सनल लाइफ को आप देखिए। जितने भी आज कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करते हैं सब पंक्चुअल होते हैं, जितनी कैपेबिलिटी होती है उतना वो काम करते हैं। ये सब गांधी के ही पाठ तो हैं, ये गांधी के पाठ नहीं है, बेसिकली ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पाठ है। इट इज इथिक्स, कांट का जो है इथिक्स है, हिगेलियन डायलेक्टिक्स है। गांधी स्वयं कहता है कि मैं नया कोई चीज नहीं कर रहा हूं, जो पुरानी चीजें थी उसी को मैं नया परिप्रेक्ष्य में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो गांधी से ये लेसन लेने की जरूरत है, और मेरा ये मानना है ऊंचाई के शिखर पर भी आप गांधीयन इथिक्स से पहुंच सकते हैं। बराक ओबामा कहते हैं कि अगर गांधी ना होते तो मार्टिन लूथर किंग इंस्पायर नहीं होते,
तो मैं कभी भी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बनना होता। आई हैव ए ड्रीम, ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। सो आई वांट एवरी यूथ मस्ट हैव ए ड्रीम टू फुलफिल इट। ड्रीम को करिए, आगे बढ़ेंगे। फिर कभी केएम कॉलेज में मिलेंगे तो रूबरू होकर डिस्कशन होगा, बड़े लंबे डिस्कशन चल सकते हैं इस पर। मेरा यही है कि आप जहां भी हो राइज करिए, इवॉल्व करिए, सिस्टम से ऊपर उठिए, और सिस्टम से जब आप ऊपर उठ जाएंगे तो आप जरूर राइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for such comprehensive answer. Due to time restrictions, we can't take any more questions. Now, I would like to invite the coordinator of our society, Mehak Mittaldi, to please come forward and give vote of thanks. Thank you so much for inviting me, Prakhar. To deliver this vote of thanks, I would like to thank Dr. Anil Datta Mishra for coming here and sharing such thoughts with us. It was really, really insightful, sir. Now, I would also like to thank our principal, Professor Vibha Singh Chauhan, and our convener, Dr. Vikram Singh Chaudhary, for allowing us and assisting us in organizing this event. My heartiest gratitude to the entire team of Kartavya for putting the best of their efforts and making this event a success. Last but not the least, the audience, whose presence made this event a worth attending. And thank you so much, everyone, for your valuable questions. Now, over to you, Kamal and Prakhar. थैंक यू दी। बस हमारा सत्र लगभग समाप्ति की ओर है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का आपको बहुत ही अच्छे से जवाब मिल गया होगा। सर ने अपने हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कैसे उनका समाधान निकाला जाए उसके बारे में हमें बताया, जो हमारे भावी जीवन में हमें काफी मदद करेगा। तो अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ इस सत्र को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा कि पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, मंजिल भी चाहिए उड़ानों के लिए, मंजिल भी चाहिए उड़ानों के लिए। एक नया जज्बा और जोश दिल में जगाकर, एक नया जज्बा और जोश दिल में जगाकर, आइए चलें अपनी मंजिलों को पाने के लिए, आइए चलें अपनी मंजिलों को पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।